Good evening, students. Open your graph books. We will be solving question number 3 today. From sub question 1. They are important questions. Mark them. They are most important questions. Question number 3. These type of questions can come in exam. Question number 4 will not come. It will not be done in school also, and it won't be coming in exam. Most of the time, it never comes in exam. So only question number 3 is left now. See, in question number 3, they have said find the coordinates of vertices. Find the coordinates of vertices. Underline vertices, and we have to find the area of the triangle enclosed by the y-axis and the graphs of equation x plus 3y equals 12 and x minus 3y equals 0. ये दो इक्वेशंस है. आपको पहले इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है. ठीक है. हाउ डू वी प्लॉट द इक्वेशंस? फर्स्ट आई मेक अ सब्जेक्ट. ठीक है. देन आई अज्यूम द वैल्यूज ऑफ y, 3 values of y, and I make a table. ठीक है. तो ये करो पहले. Assume the values of y and make a table. Here also x equals 3y. So you will assume 3 values of y and make a table. So क्या करेंगे यहाँ पे? Let's say I take y as 2. ठीक है. y को अगर मैं 2 लूंगा यहाँ पे, see here, if I take y as 2, so I will get x equals 12 minus 3 into 2 means 12 minus 6. So क्या मिलेगा मुझे? x 6 मिलेगा. करेक्ट. y जब मैंने 2 लिया है, when I take y as 2, I am getting x as 6. Okay. Similarly, अब y को 3 लो. Okay, y को 3 लोगे तो you will have 12 minus 3 into 3. So you will have x as 12 minus 9, that is 3. जब y को 3 लोगे आपको x भी 3 मिलेगा. Okay, and then you take y as 4. When you will take y as 4, you will get x as 0. वैल्यू पुट करके देखो, आप खुद करके देखो. 12 minus 3 into 4. So x equals 12 minus 12, that is 0. आपको x मिलेगा 0. ये आपका 3 वर्किंग होगा. 3 वर्किंग्स. 3 values of y you have assumed, and accordingly you have got the values of x, and then you write it in the table. Same thing, do it here also. Your equation is x equals 3y. यहाँ पे तो आप orally भी कर सकते हो. Copy this first. Copy this. If the scale is not given, you will take 2 centimeter equals 2 units. मतलब 2, 4, 6, 8 वही लोगे. In the second equation, अगर आपने y को 0 लिया तो 3 into 0, x भी 0 बन जाएगा. अगर y को 0 लोगे तो x भी 0 हो जाएगा. ओरली आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है. अगर आप y को 1 लोगे तो 3 into 1,
x भी 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, y को 1 लिया तो, और अगर y को 2 लिया तो 3 2 जा 6, तो आपको x मिलेगा 6। सो ये आपने दो इक्वेशंस के, these are the two, you have made the table of the two equations. Now you will plot these points 6 comma 2, 3 comma 3, 0 comma 4, 0 comma 0, 3 comma 1, 6 comma 2। ये दोनों इक्वेशन, दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने से आपको दो लाइंस मिलेंगे। 6 comma 2 will be here, 3 comma 3 will be here, and 0 comma 4 will be here. This is the line I am getting from the first equation. Yes, do it fast. Lalbagh batch students, especially you are doing it for the first time, so solve it properly. Text me as soon as you complete, so I can plot the second line, the line for the second equation using these points. बहुत ही important questions है ये, mind it, they will definitely come in exam. मैं दूसरे कलर से सेकेंड लाइन को प्लॉट करता हूँ। Zero comma 0 means this is the point. 3 comma 1 means here. 6 comma 2 means here. This is the second line you will get. Plot this. Draw किया. Now see what they are saying in the question. If we come to the question again, find the coordinates of the vertices and the area of the triangle enclosed by the y-axis and these two graphs. मतलब ये दो lines जो मैंने draw की है वो, और y-axis कहाँ होता है? Where is the y-axis? This is the y-axis here. This vertical line which is there in between is the y-axis. ठीक है, ये see this is your y-axis, this line here, correct? ये एक लाइन आपको मिली थी और ये एक लाइन, ठीक है? तो इन y-axis से और ये दोनों लाइन से जो आपने प्लॉट की है, इन तीनों से एक ट्राइंगल बन रहा है। ये तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल को मैं हाईलाइट करता हूं, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म्ड, करेक्ट? इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, दिस ट्राइंगल। सी ये है वाई एक्सिस, ये थी आपकी फर्स्ट लाइन और ये थी आपका सेकेंड लाइन, ठीक है? इन तीनों के हेल्प से ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। अब आपको पूछा क्या है? यू हैव टू फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ दिस ट्राइंगल, okay, vertices of this triangle, and then you have to find the area of the triangle.
two things you have to find. Okay, vertices and the area. Now what are vertices? Vertices क्या होता है? अगर ये एक ट्राइंगल है तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना इसके ट्राइंगल के, these are called as vertices. These points are called as the vertices of the triangle. ठीक है, तो इस ट्राइंगल के क्या क्या vertices है? I will write here. Vertices of the triangle are, क्या vertices है यहाँ पे? ये फर्स्ट है, so 6,2, 6,2 एक vertices है, vertex है. ठीक है, दूसरा vertex है ये, एक ये मार्क किया. ठीक है, दूसरा vertex है ये, this is 0,4, correct, and third vertex is this, correct. 1, 2 and 3, these are the three vertex. Okay, तो ये जो vertex है ये है origin basically, so that is 0,0. Okay, ये तीन vertices है आपके triangle के. Okay, now you also have to find the area of the triangle. आपको क्या ढूंढना है? और area भी ढूंढना है triangle का. देखो ये triangle कुछ ऐसे है, ये triangle कुछ ऐसे है. ठीक है, तो triangle में जो straight side होती है you have to take that as the base. तो इस triangle में आप देख सकते हो ये वाली side straight है. ठीक है, you can see this side here, this is the straight side. तो इसको आपको base लेना है. This will become your base. This will become your base. और height कैसे बनाते हैं? जो थर्ड वर्टेक्स है उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है and this becomes your height. ओके, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज करनी है. इस ट्राइंगल में this will become your base and यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ऐसे and this will be your height. ये होगी height and this is your base. ओके, और एरिया क्या होता है? एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, सो क्या वैल्यू है बेस की? आप बताओ मेजर करके. यहां से यहां तक ये कितना सेंटीमीटर है? मेजर दिस. हाउ मच सेंटीमीटर इज दिस? Sir, 4 centimeter. ओके, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. यहाँ से 0 to 4 सेंटीमीटर. द बेस इज 4. ओके, और हाइट, हाइट के लिए आप मेजर करो यहाँ से यहाँ तक, दिस पॉइंट. मेजर दिस. Yes, I want answers from the Lalbagh batch also. Dhairya, Harsh, Heath, Kali, Veer, Vian. Send me the answers. Height क्या मिल रहा है आपको? Height, you will get the height as 6 सेंटीमीटर. Height आपको मिलेगी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, so 2 1s are 2 2s are, your answer is 12. ये एरिया है, एरिया. तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है. 12 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज योर एरिया. ठीक है, ये वर्टाइसिस आपका पहला आंसर था और एरिया आपका सेकेंड आंसर है. With this we complete the first question. Any doubts here? Yes, Kali. How are you getting 6.3? Sir, as height. See height आपका क्या है? आपका ये जो पॉइंट है 6,2, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो ये 3 बॉक्सेस होंगे, 1 2 3. सो आप देखो 0 से लेके 6,
6 सेंटीमीटर ही आना चाहिए आपको। 6.3 कैसे आ रहा है? ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में शायद गड़बड़ होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली ये पॉइंट आना चाहिए 6,2 ऐसा। Okay, एग्जैक्टली sir. आपके लाइंस वहां पे मीट होनी चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पे। Okay, sir. हाँ, just check again and you should get the height as 6 centimeter. So question 2. Sub question 2. Sub question 2, it is said, find the area of a triangular region whose vertices are the points of the graph. 3 equations are given to you. ठीक है, आपको वो प्लॉट करने हैं। x 2x plus y equals 5, इसका टेबल बनाना है। y equals x minus 4, इसका टेबल बनाना है। और एक और इक्वेशन दिया है y equals 5, इसका आपको टेबल नहीं बनाना है। ठीक है, दिस विल बी प्लॉटेड डायरेक्टली। These two equations which are given, you have to plot the graph for these two equations. So कैसे प्लॉट करेंगे? I will make y as the subject, y minus 2x. ठीक है, अब x की वैल्यूज अज्यूम करो। 3 values, assume 3 values of x.
एंड यहाँ पे भी 3 वैल्यूज अज्यूम करो x की, and accordingly you will get the value of y. For example, if you assume x as 0, ठीक है, तो you will get y as 5 minus 2 into 0. So 5 minus 0, that is 5. x को अगर 1 लेंगे, so y is 5 minus 2 into 1. 2 into 1 is 2 only. So 5 minus 2 is 3. Okay, तो जब आपने x को 0 लिया तो आपको y 5 मिला, x को 1 लिया तो y 3 मिला, x को अगर 2 लोगे तो you will get 5 minus 2 into 2. 5 minus 4, that is 1. You will get y as 1. Similarly, यहाँ पे भी put करो x की values. Here, assume 3 values of x. 1, 2, 3 ले लो. Simple. 1 लोगे x, 1, 2 और 3 ले लो. तो आपको 1 लोगे तो 1 minus 4, you will get minus 3, minus 2, minus 1. कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, ओरली आंसर आ रहा है इसमें. Once you have the 3 points, plot them on the graph. 0, 5, 1, 3, 2, 1, 1, minus 3, 2, minus 2, 3, minus 1. 2 lines बनेंगे. Plot these points. Zero, 5. तो x पे 0 है, y पे 5. So point will be here. Then 1, 3 will be here. And 2, 1 will be here. This is how your line should pass. ये जो लाइन बनाई है मैंने इन पॉइंट्स के बेसिस पे बनाई है. Now these points, plot these points. 1, minus 3. Let's use another color. 2, minus 2. 3, minus 1. Extend this line. You should get these 2 lines. अब आपको फाइंड करना है एरिया.
बट बिफोर दैट 2 लाइंस आपने प्लॉट की है, एक और किया था y इक्वल्स 5, y इक्वल्स 5, ये एक और दिया था आपको। y इक्वल्स 5 कहाँ पे होता है? दिस इज द पॉइंट y इक्वल्स 5। ओके, तो इस पॉइंट से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल्स 5, लाइक दिस। इसके लिए कुछ अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लॉट होता है y इक्वल्स 5। अगर y इक्वल्स 2 बोलते तो वो लाइन यहाँ पे आती, y इक्वल्स 8 बोलते तो यहाँ पे आती, y इक्वल्स -6 बोलते तो यहाँ पे आती लाइन, ऐसा। अगर x के लिए बोलते हैं x इक्वल्स -6, तो वो x इक्वल्स -6 पे स्टैंडिंग लाइन आती है ऐसे, उस पॉइंट से पास होनी चाहिए। x इक्वल्स -4 बोलते तो ऐसे आती। ठीक है, ये 3 प्लॉट किया है। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्लॉट दिस। I'll wait for a minute, complete this part, and then I'll explain you what to do next. We have to find the area now. Akshal, Krishna, Mitanj, do you have any doubt? Your hand is raised. Kali, y equals 0 means this line here. You will draw a line like this on the x-axis. Y equals 0. क्योंकि y equals 2 ये है, -2 ये है, तो 0 भी ऐसे ही आएगा। ये होगा y equals 0 लाइन। सर सर अभी हम लोग को दोनों इसका फाइंड आउट करना है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। नहीं नहीं, दोनों का नहीं करना है। ओके सर। Yes, Mitanj. So what is y equals 5? Y equals 5 is a line. जो y की वैल्यू 5 कहाँ पे होती है? उस पॉइंट से पास होती है। Yes. हाँ, अगर हम जो आपको बोला x इक्वल्स 5 लाइन, तो x इक्वल्स 5 कहाँ पे है? यहाँ पे, ये पॉइंट पे। तो यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन पास होगी। x के लिए स्टैंडिंग लाइन पास होती है, y के लिए स्लीपिंग लाइन पास होती है। And the triangle will, this triangle will. हाँ, will ट्रायंगल take- में बताता हूँ, ट्रायंगल में बताता हूँ। सो उन्होंने क्या बोला था कि जो 3 इक्वेशंस थे, आपको 3 चीजें दी थी, ठीक है? 3 इक्वेशंस दिए थे। आपका फर्स्ट इक्वेशन, जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या था? हाँ, योर फर्स्ट इक्वेशन वाज 2x प्लस y इक्वल्स 5, ये था फर्स्ट। ये था सेकंड इक्वेशन, और ये था थर्ड इक्वेशन, y इक्वल्स 5। ठीक है, तो इन तीनों को मिलके कहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हुआ है? सो इन तीनों को मिलके दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म, दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म्ड इन तीनों इक्वेशन से। सो इस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? इसमें जो फ्लैट साइड है, मैंने आपको बताया, जो स्ट्रेट साइड है दैट विल बिकम द बेस। तो इसको आप बेस ले लो, दिस साइड, टेक दिस साइड एज द बेस। ओके, ये बेस है। आप मेजर करो यहां से लेके यहां तक कितना बेस हो रहा है, टेल मी द वैल्यू ऑफ बेस। एंड देन हाइट के लिए बेस के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ऐसी, परपेंडिकुलर। ये वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक, दिस विल बिकम द हाइट। टेल मी द वैल्यू ऑफ base and height, and then we will do half base into height. Base, Heath, just check once again.
बेस आपको 9 आना चाहिए, 9। ये पॉइंट जहाँ मीट हो रहा है ना, मेरे ग्राफ में 8 आ रहा है वैसे तो, बट आई गेस शायद 9 होना चाहिए ये। बेस शुड बी 9 एंड हाइट शुड बी आई थिंक 7। हाइट आपको 7 आना चाहिए, नहीं 7 नहीं 6 आना चाहिए, करेक्ट, सॉरी। हाइट शुड बी 6। बेस so you will get the 2 1s are 2 3s are 9 3s are 27. So you will answer is 27 square units is your area. नहीं हीट थोड़ा वापस ड्रॉ करो, आपको प्रॉपरली 9 के ऊपर आएगा। यहाँ पे पॉइंट आपका मीट होगा ऐसे कुछ, ये ऐसे यहाँ पे मीट होगी लाइन, एग्जैक्टली 9 होगा ये। हाँ 5 मिनी बॉक्सेस मतलब 9 हुआ ना हीट, ये 10 है यहाँ पे, तो 5 मिनी बॉक्सेस मतलब इतना, तो ये 9 ही होगा। Just check, all of you should get 9 and 6, and then height or base बना के you have to find the area and you should get the area is 27 square units. If any doubts you can raise your hand. सर मेरे ग्राफ पे हाइट 4 आ रहा है, जो फोर्थ बॉक्स में उसमें भी जिसमें मेरा 9 में खाली 5 छोटे बॉक्सेस है उतना ही आ रहा है। कहाँ पे, कहाँ पे? ये 4 में 4 बॉक्सेस है मेरे में। इधर? हाँ मतलब वो एक हाफ है ना, वो फिफ्थ वाला, वो 4 हो रहा है फिर। हाँ ठीक है, बट फिर भी वो 9 ही काउंट करो उसको। सर हाइट का बोल रहा हूँ, हाइट का। अच्छा हाइट का, तो हाइट में तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ना यहाँ से हाँ लेके सर, यहाँ तक। हाँ सर, तो ये हाफ लाइन भी काउंट, हाफ लाइन को फुल काउंट करो ना। नहीं 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 5 फुल 6। नहीं, नहीं 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 नहीं, सी देखो, ये जो एक बड़ा बॉक्स होता है ना, ये 2 सेंटीमीटर होता है, बरोबर? यस सर। हाँ तो ये छोटा वाला 1 सेंटीमीटर हुआ, यस सर। ठीक है, ये हुआ फिर 2, ये यस। वापस 2 और ये वापस 1, यस सर। तो कितना हुआ? 1 + 2 + 2 + 1। ओके, तो मुझे लगा उसको फुल बॉक्स काउंट करना है। नहीं नहीं नहीं, फुल बॉक्स नहीं काउंट करना। ओके सर। यस कृष्णा, मितांश, एनी डाउट? 8.8 नहीं, एग्जैक्ट 9 ही आना चाहिए। वो कवर कवर दे दो। Okay, so area is 27 square units. If all of you are completed, we can start with the third sub question. Okay, I hope all of you have completed. So let us start with the third sub question. Yes, Midansh. So the vertices are 0,5. Vertices पूछा नहीं है. Okay. हाँ, they have not asked the vertices, so no need to find them.
See, in the third sub question, find graphically the vertices of a triangle. Find the vertices of a triangle. तो हमें vertices find करना है whose sides are 3x plus 4y equals 12, y minus 6 equals 0 and y equals 2x minus 8. और फिर उसका एरिया भी फाइंड करना है. ठीक है, मतलब 3 इक्वेशंस दिए हैं हमें. ठीक है, उस 3 इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स 12. इसको मुझे सॉल्व करना है और 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं. सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, y माइनस 6 इक्वल 0. y माइनस 6 इक्वल 0 मतलब y इक्वल 6. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली लाइन बन जाएगी. ओके, y इक्वल 6 की डायरेक्टली लाइन बन जाएगी. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ. y माइनस 6 इक्वल 0 मीन्स y इक्वल 6. ये डायरेक्टली लाइन बन जाएगी. एंड थर्ड इक्वेशन इज y इक्वल्स 2x माइनस 8. ओके, इसके लिए मुझे वापस टेबल बनाना पड़ेगा. 2 वेरिएबल्स आते हैं तो आई हैव टू मेक अ टेबल. ठीक है, सो यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाते हैं, x को बना देते हैं 12 माइनस 4y अपॉन 12 minus 4y. So x is 12 minus 4y upon 3. Now tell me what value of y can you take? फिर हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे. सोचो, फिर मैं पूछता हूँ, तब तक मैं भी मेरा ग्राफ कंप्लीट करता हूँ. Sir, the first value can be taken as 0. करेक्ट, आई कैन टेक y as 0. देखो ये है मेरा y यहाँ पे. इस y को मैं 0 ले लूंगा तो 4 into 0 is 0, तो 12 upon 3 आ जाएगा. ठीक है, 12 upon 3 is 4. Means when you take y as 0, you are getting x as 4. ओके, ये एक हो गया. दूसरा वैल्यू क्या ले y का, यस कृष्णा. Sir, 7. You can take 7. 7. ओके, बहुत बड़ा नंबर सोचा है आपने. तो x इक्वल्स 12 माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 3. सो x इक्वल्स 12 माइनस 28 अपॉन 3. तो ये मिलेगा 18 नहीं, 18 नहीं, कितना हो जाएगा, नहीं कैसे आएगा इसमें, नहीं, sorry. टाइम पास. हाँ, 7 नहीं चलेगा, और कुछ बताओ. आई कैन, मुझे मैसेज में आया है मेग इज सेइंग 3 ले सकते हैं. यस, y को 3 ले लेंगे तो 12 माइनस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 ही होता है. सो 12 माइनस 12 अपॉन 3, तो ये तो 0 हो जाएगा. मीन्स जब y को 3 लिया तो x 0 मिला. ओके, यस. अदर एक और वैल्यू बताओ y की. यस हीत. सर ये 3 आएगा नहीं, क्योंकि 12 माइनस 12 0/3 हो जाएगा. 0/3 0 होता है. अच्छा ऐसे. ओके सर. Okay, make y equals 6. Meg is saying y equals 6. Let's try y equals 6. X equals 12 minus 4 into 6 upon 3. So 12 minus 24 upon 3 minus 12 upon 3. So x क्या मिल रहा है, -4. चलेगा ये भी, -4. 6 और -4.
यस, आप y इक्वल्स -3 भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड। उससे 8 आ जाएगा x की वैल्यू, वो भी चलेगा। सो मेरे 3 वैल्यूज हो गए हैं। सेकंड वाले की भी 3 वैल्यूज फाइंड कर लो x के इक्वेशन के। x की 3 वैल्यूज क्या अज्यूम करेंगे वो भी सोच लो। x को अगर 1 लेंगे तो y will be 2 into 1, that is 2 only. 2 minus 6, that is -6. So x को अगर 1 लिया तो y -6 मिलेगा। 0 भी ले सकते हैं तो y -8 आएगा। 0 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो you will get y as -8। और अगर x को 2 लेंगे, 2 into 2 -8, so 4 minus 8, that is -4। x को अगर 2 लिया तो I will get -4। Let us plot the lines। पहले फर्स्ट वाला प्लॉट करते हैं। 4,0, 0,3 and -4,6। These are the 3 points। ये बन रही है लाइन। सेकेंड इक्वेशन, द लाइन इज 1 -6। 1, -6 मतलब यहाँ पे 0, -8। सो x is 0, y के लिए -8 मीन्स यहाँ पे, एंड 2 -4 मीन्स यहाँ पे। ठीक है, we join these points। तो दोनों इक्वेशंस प्लॉट किए, और थर्ड एक और इक्वेशन था, ये याद होगा आपको। दिस वाज द थर्ड इक्वेशन, y = 6। सो y = 6 पे एक लाइन बनाओ। y = 6 पे लाइन बनाओ लाइक दिस। So how is the triangle formed using these 3 lines? आपको दिख रहा है अच्छे से कैसे इन तीनों को मिलके? और कोई ट्राइंगल को मत देखो, जैसे यहाँ पे अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है या यहाँ पे कोई ट्राइंगल बन रहा है,
या यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है, इसको नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपके 3 लाइंस को कनेक्ट होके कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है. So this is the triangle formed by your lines. See, this is the triangle formed. Now you have to find the area of this triangle. अच्छा, एरिया के पहले you have to find the vertices also. ठीक है, तो पहले आप vertices लिख दो. So क्या vertices है triangles के? 1, 2 और 3. ये तीनों vertices है. To see the points, we will write the vertices. क्या vertices है? एक vertex मुझे दिख रहा है -4,6. दूसरा vertex is 4,0. And third vertex, which is the third vertex you are getting? कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है? ये पॉइंट देखो प्रॉपरली. मैंने रफली किया है तो मेरा रॉन्ग हो सकता है. What is the third vertex you are getting? 8,6 आ रहा है. Are you getting the vertex as 8,6? Sir, first I am getting -4, then I'm getting 4, and then I'm getting 7. So it is 4,7, then 4, -4, and -4 like this. $7,6 आ रहा है, I think. $7,6 आ रहा होगा शायद. जरा सब लोग चेक करो अच्छे से. 7,6 होगा. यस, तो vertices are 7,6. ठीक है. And how to find the area? Area is half base into height. और बेस मैंने आपको बताया है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको आप बेस लोगे. ठीक है. और ये जो हाइट, इसको आप हाइट ले लोगे. दिस विल बी योर हाइट. सो चेक क्या वैल्यूज मिल रही है बेस और हाइट की. बॉक्सेस काउंट कर सकते हो. एक बड़ा बॉक्स 2 सेंटीमीटर होता है, या फिर आप स्केल से भी कर सकते हो. बॉक्सेस काउंट करोगे तो वो इजी होगा. हाइट 6 मिलेगा आपको, एंड बेस आई गेस यू विल गेट इट एज 11. और 12 कितना आ रहा है? बेस 11 आ रहा है, 12 आ रहा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ रहा है. बेस 11 और हाइट आएगा 6. ठीक है. सो योर एरिया विल बी 33 स्क्वायर यूनिट्स. Understood this sum?
सर बोलो। सर ये जो वैल्यू है 4,0 वो वाली कहाँ से आई? 4,0 यस सर। ये इधर, एक मिनट। ये 3 वर्टाइसेस है ना ट्राइंगल के। हेलो, गायब हो गए। ओके, यस हर्ष। So can you re-explain how we got the breadth and height? बेस एंड हाइट, सी देखो ये है आपका बेस यहाँ से यहाँ, तो आपका ये काउंट करो कितना है। ये 2 2 2 2 2 10 सेंटीमीटर और ये हाफ 11 सेंटीमीटर। ये आगा बेस हो गया आपका। ओके, और ये आपका हाइट है 2 2 और 2 6 सेंटीमीटर आपका हाइट है। Okay. सर बोलो। सर ये बेस 11 कैसे मिला सर? बेस यहाँ से अच्छा लेके इसको स्केल से मेजर करने यहाँ का। तक मेजर करो। ओके सर, गॉट इट। हम्म। I'll erase the answers. I hope all of you have solved it. So fourth sub question कर सकते हैं हम। We'll start with the fourth sub question. Same है इसमें भी। 3 equations दिए है। Find draw the graphs of 3x equals 4y plus 32 and दूसरा है 3x plus 4y equals 16। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ्स प्लॉट कर लेते हैं पहले। इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं एंड लेट्स प्लॉट द ग्राफ्स फर्स्ट। You will make x the subject, so you will get 4y plus 32 upon 3। थोड़ा ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा अभी y की वैल्यूज। क्या वैल्यूज ले सकते हैं हम y की? कैन यू गेस? You can take y as -2, correct Meg? -2. So x will be 4 into -2 plus 32 upon 3. That is -8 plus 32 upon 3. That is 24 upon 3. That is 8. तो जब आपने y को -2 लिया तो आपको x 8 मिला।
make you should get the value of x in the range. 12 आप प्लॉट नहीं कर पाओगे. नेगेटिव वैल्यूज ही अज्यूम करो y की. Try to assume some of the negative values of y. y को हम -5 ले सकते हैं, I guess. So -5 will work. X equals 4 into -5 plus 32 upon 3. So -20 plus 32 upon 3. That is 12 upon 3. That is 4. जब y -5 लिया तो I got x as 4. How -4 कली? -4 into 4 is -16 plus 32. तो वो तो 16 हो जाएगा. 16 upon 3 आप नहीं कर पाओगे. -4 नहीं चलेगा. Yes, one more value has come to my mind. Yes, Veer. Sir, we can take -3. -3 से भी नहीं होगा. 4 into -3 -12 आ जाएगा और प्लस 32. तो ये आपको 20/3 मिल जाएगा. वापस डेसिमल आ जाएगा. हर्ष -2 ले लिया हमने फर्स्ट वैल्यू. मेरे दिमाग में एक वैल्यू आया है. यू कैन टेक y एज. सी कैसे आया मेरे दिमाग में ये वैल्यू? न्यूमरेटर में आप 0 कैसे ला सकते हो? 0 तो 32 - 32 आएगा तभी. करेक्ट. तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 32 मिलेगा? 8 से. और -32 चाहिए तो मैं y को -8 लेता हूँ. ओके, सो मुझे क्या मिलेगा? 4 into -8 plus 32/3. That is -32 plus 32/3. That is 0/3. 0/3 क्या होता है? 0. तो y को जब -8 लिया तो मुझे x क्या मिला? 0. तो ये मेरा थर्ड पॉइंट बन गया. कली इफ यू टेक 1 you will get 36/3. 36/3 is 12. तो आप x12 को प्लॉट कर पाओगे क्या? आपके पास नहीं होगा x12. ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं कर सकते हम. सेकेंड इक्वेशन में भी सोचना है अभी. चलो सेकेंड इक्वेशन में सोचते हैं. You can take y as 1. So 16 minus 4 into 1/3. 16 minus 4/3. 12/3. So x is 4. ठीक है, इसका टेबल मैं यहाँ बनाता हूँ. जब y को 1 लिया तो आपको x 4 मिला. ओके, और सोचो क्या ले सकते हो. 2 से कैसे होगा कली? 2 लोगे तो 8/3 आ जाएगा. -2 ले सकते हो आप. y को -2 ले सकते हो. (16 plus 8/3). That is 24/3. So you will get x as 8.
जब y को -2 लोगे तो x 8 मिलेगा. Any other value? Think. What other value can you take? Kali, if you take -1, you will get 16 plus 4, 20/3 आ जाएगा. वो भी decimal होगा. You can send me your answer in the chat box. I'm reading continuously. और कोई वैल्यू किसी के दिमाग में आ रही है? अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर हम कोई डेसिमल नंबर लेके भी कर सकते हैं, बट वी शुड ट्राई टू अवॉइड डेसिमल. कुछ नहीं मिल रहा तो लेट्स टेक y as 0 और डेसिमल से ही काम चला लेंगे. तो 16 minus 0/3. What is 16/3? 5.33, I think. So we can take y as 4, so we can get it 0.3. हाँ, very good. Very good. तो ये डेसिमल हटा दो. We can take y as 4. Very good. So 4 4s are 16 हो जाएगा. X equals 16 minus 4 into 4/3. So that is 16 minus 16/4. That is 0/4, 0. ये सही है. y को 4 लिया तो x 0 मिला. So मिल गए 3 points. Let us plot the graphs. 8, -2. First 8, -2 इधर आएगा. 4, -5 will be here. 0, -8 will be here. This is the line I am getting. The first line. So 16 minus 16, how did we get upon 4? Sorry, it's upon 3. But 0/3 is also 0 only. Second line को plot करते हैं. Second equation. This one. X is 4, 1. Then 8, -2 again. ये same point आ गया. And 0, 4 will be here. This is how your second line will be.
सो दो लाइंस आपने प्लॉट कर दी. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस विथ y plus 2 equals 0. ये भी दिया है y plus 2 equals 0. ठीक है, तो y plus 2 equals 0 means y equals -2. ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है y equals -2. तो इसको भी आपको प्लॉट करना है y equals -2. First plot the first two lines. Now we have to draw a line y equals -2. y equals -2 पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. Okay, so y equals -2 means here. But the thing is now, see, in this question actually they have made a printing mistake here. Instead of this y plus 2 equals 0 or y equals -2, they should have given you y axis. उनको y axis देना चाहिए था यहाँ पे. ठीक है, because y equals -2, ये जो लाइन है, this line, it doesn't intersect. ये दो सबको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल यूजिंग दिस. हम ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे. So there is a printing mistake. Last year also this was the problem. It was corrected in school. So you also make a correction. जहाँ पे आपको क्वेश्चन में y plus 2 equals 0 लिखा है, उसको आप कट कर दो और वहाँ पे लिखो y axis.
in the sub question 4, the second line they have written with y plus 2 equals 0. उस y plus 2 equals 0 को कट करो और वहां पे लिखो y axis. ओके तो ये आपको ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. y equals -2. y axis क्या है आपके लिए? दिस इज योर y axis. ये है y axis. ठीक है. See, I'm highlighting it with green. This is your y axis. ओके तो अब आपको तीनों साइड्स दिख रही है ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल बन रहे हैं. जो दो लाइंस बनाई है हमने ब्लैक और ब्लू में, एंड जो y एक्सिस है. सो इससे ट्रायंगल क्या फॉर्म होगा? दिस विल बी द ट्रायंगल फॉर्म्ड. ओके इस ट्रायंगल का आपको वर्टाइसिस और एरिया नहीं पेरीमीटर फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर. ओके यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल. सो आप स्केल से मेजर कर लो. मेजर दिस साइड, मेजर दिस साइड, और ये आप ओरली भी कर सकते हो बॉक्सेस काउंट करके. 1 2 3 4 5 6 6 2 12 सेंटीमीटर आएगा ये. आप चाहिए तो फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन गिव नेम्स आल्सो. मीन्स यू कैन नेम द पॉइंट्स ए बी और सी. ठीक है तो पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है अब आप स्केल से मेजर करो. आपको ए बी कितना मिलेगा? आपको आई गेस 10 यूनिट्स मिलेगा. बी सी यू विल ऑल्सो गेट इट एज 10 यूनिट्स एंड सी ए यू विल गेट इट एज 12 यूनिट्स. सो योर आंसर विल बी 32 यूनिट्स पेरीमीटर. So we have to also find the vertices also, no? बोला है क्या? ऐसा लिखा है क्या? फाइंड द वर्टाइसेस. लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन. हाँ यस यू हैव टू फाइंड द वर्टाइसेस आल्सो. यस वर्टाइसेस भी लिख लेते हैं. वर्टाइसेस आर, तो देख लो ये तीन वर्टाइसेस है आपके. एक, ये एक है, ये एक है और ये एक है. सो नेम देम. क्या नंबर्स है? 0,4, देन 8,-2 and 0,-8. These are the vertices. These are the vertices. So ये आपका फाइनल आंसर हुआ. पेरीमीटर एंड vertices. So with this, we complete the exercise 21B. Okay. We'll stop here today. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, goodbye to all of you. Take care.